Good afternoon. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. One of our subscriber raised a question, Sir, how you are counting that 13,000 plus subscribers are either employed in banking, finance and other sectors? How you arrive at this figure, I am curious. Although I have given these figures in my previous videos also, just to satisfy the anxiety of this subscriber, I am giving my methodology, how I am counting. Up to 31st August 2019, there was around 4,000 subscribers, those were employed in banking, finance, insurance and other sectors. And details of that was covered in many videos. Thereafter, result of IDBI AM came and 90% of our subscriber got the job. This made the figure 4,090. Thereafter, IDBI executive result came, 500 subscriber got success. 90 of our channel subscriber got success in IDBI postgraduate diploma in banking finance, and 2012 SBI PO were selected. This is the number that we counted from the confirmation on the comments of result videos and videos run during those days. Because whenever some result come, I post a video and I ask the candidates to tell about their result. So when they tell their result, this number is counted. And how we get to know this figure, this is our mechanism. And we go on adding these figures. So this is conservative figure. There are many people, those are not even reporting. They are already selected, but they don't like to post a comment. So this is conservative. The real figure may be much higher than this, but still we take this figure just to motivate the people how people are getting successful. This is just for motivation. Then SBI clerk 2019 result came, and in that also around 900 of our channel subscriber confirmed they got the success. So up to this date, the total number went to 5,792. Then LIC AO result come. 30 of those subscribers got the success, they confirmed. Then LIC ADO result came. 90 more subscribers got the success. Then EPFO assistant result came. 25 of channel subscriber confirmed. Then LIC housing finance result came. 15 of channel subscriber were covered. Then RRB reserve list came. Again 50 of the subscriber got success and they confirmed. The total number went to 6,002. Then RRB clerk officer scale 2 scale 3 result came. 1,300 subscriber confirmed they got the success. UDC ESIC result came. 24 subscriber confirmed. IDBI AM new list came. 40 more subscriber got the success. FCI AG result came. 352 subscriber got the success. LIC assistant result came. 542 of our subscriber got the success. LIC impanel candidates are also there. They are 106. Reserve list of IBPS, 35 more candidates were selected. Then IBPS clerk POSO result came in 2020. In that 2,806 candidates got the success. Out of this 650 were PO, 2001 was clerk, 56 was SO. So the total number reached 11,207. Then wait list of SBI came. 52 more people were selected. 11,259 was the result. Then RBI assistant 97. The number reached to 11,346. Then SBI junior associate 1,063. That is 2020 result. Then RRB reserve list 15.
EPFO SSA 38, 12,462. There are more than 500 more people, those were selected in smaller competitions, smaller examinations. They reported that we are taking just plus and minus. So this is the detail, how we work out. The purpose of quoting a figure is just to motivate you. It is not to claim any, you can say, anything from you. I am not asking anything from you. If I give a figure, it is just to motivate more and more people to remain motivated. That is the only purpose. And whatever I am saying, everything is backed by a data. And the people, those are having any iota of doubt, they can watch those videos, then go through the comments. They will come to know how many people got selected. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. यूजुअली मैं एक शब्द यूज करता हूं कि लगभग 13,000 लोग हमारे ऐसे हैं जिनको बैंकिंग, फाइनेंस और अदर सेक्टर में जॉब्स मिल गई है. आज एक व्यक्ति ने पूछा कि सर ये 13,000 की फिगर आप कैसे काउंट करते हो. ये मैंने बार बार बताया है अपने वीडियोस में, पर आज क्वेश्चन उठा है तो बताना चाहिए ताकि आपको लगे कि जो बातें इस चैनल पे हम बता रहे हैं उसका बेसिस क्या है. जब मैंने ये गणना शुरू की तो 31/8/2019 तक 4,000 लोगों का ये काउंट हो चुका था, जो मैंने प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन किया था 4,000 का आंकड़ा कैसे आया. उसके बाद का जो रिजल्ट आते चले गए वो मेरी इस डायरी पे नोटेड है, जहां से मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं. 90 लोग पास हुए जो IDBI असिस्टेंट मैनेजर का रिजल्ट आया. 500 लोग थे IDBI एग्जीक्यूटिव के अंदर. ये 2019 की मैं बात आपको बता रहा हूं. 90 लोग और सेलेक्ट हुए IDBI पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग फाइनेंस में. 212 लोग SBI PO बने जो 2019 में रिजल्ट आया. 4,892 का आंकड़ा हो गया. इसके बाद 900 लोग SBI जूनियर एसोसिएट सेलेक्ट हुए चैनल के. 5,792 का आंकड़ा हो गया. LIC AO में 30 लोग सेलेक्ट हुए. LIC ADO में 90 लोग सेलेक्ट हुए. EPFO असिस्टेंट में 25, LIC हाउसिंग फाइनेंस में 15, RRB रिजर्व लिस्ट में 50 और यह आंकड़ा बढ़ के हो गया 6,002. इसके बाद RRB क्लर्क ऑफिसर स्केल 2 स्केल 3 का रिजल्ट आया. उसमें 1,300 चैनल सब्सक्राइबर को सक्सेस मिली. उसके बाद UDC ESIC का रिजल्ट आया. IDBI AM का रिजल्ट आया. ये 40 लोग और बढ़े. UDC ESIC में 24 लोग आगे बढ़े. FCI में 352 लोग और ऐड हुए. LIC असिस्टेंट में 542 और इन पैनल लिस्ट में 106. इसके बाद रिजर्व लिस्ट IBPS की, उसमें 35 लोग हुए. IBPS PO SO का 2020 में रिजल्ट आया, जिसमें 2,806 लोग सेलेक्ट हुए, जिसमें 650 PO, 2,100 क्लर्क, 56 SO और आंकड़ा बढ़ के हो गया 11,207. इसके बाद वेट लिस्ट आई स्टेट बैंक की, उसमें 52 लोग हुए. 11,259 का ये आंकड़ा हो गया. RBI असिस्टेंट का रिजल्ट आया. 97 लोग उसमें पास हुए. इसके बाद SBI जूनियर एसोसिएट 20 का रिजल्ट आया, जिसमें 1,063 प्लस लोग सेलेक्ट हुए. फिर RRB की रिजर्व लिस्ट आई जिसमें 15 लोग हुए. EPFO SO में 38 लोग हुए और ये आंकड़ा बढ़ के हो गया 12,462 का. इसके अलावा छोटे छोटे रिजल्ट आए, किसी में 4, किसी में 5, किसी में 2. वो आंकड़ा लगभग 500 से अधिक का बनता है. इसलिए हम राउंड ऑफ करके एक फिगर 13,000 का आंकड़ा लेके चलते हैं, जबकि असली आंकड़ा इससे कहीं गुना है, कहीं ज़्यादा है. क्यों है? क्योंकि काफ़ी लोग कमेंट करके बताते नहीं हैं, बताते हैं लेट बताते हैं, फिर वो हमारी काउंटिंग में से रह जाता है. क्योंकि जो उन्हीं दिनों में बताते हैं वही मैं काउंट कर पाता हूँ. उसके बाद तो अगली थ्योरी पे चल पड़ते हैं, अगले एग्जाम में चल पड़ते हैं. अब ये जो आंकड़ा है, इसका ये मकसद नहीं है कि कोई हम क्लेम कर रहे हैं या हम किसी से कोई चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं. ये आंकड़ा आपको इसलिए बताया जाता है कि आप इससे मोटिवेट होते हैं. आपको लगता है कि सर की बात मानने के बाद इतने अधिक लोगों की सिलेक्शन हुई है तो हमारी भी हो सकती है. क्योंकि जब तक आपके अंदर ये भावना नहीं पैदा होगी कि हाँ हम सेलेक्ट हो सकते हैं, तो आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता है. पर्पस सिर्फ यही है उसका.
उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई मुझे इसके लिए कोई मैं आपसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। और किसी ने पूछा, फिर भी मैंने सोचा कि किसी भी व्यक्ति की जो अगर कोई क्यूरियोसिटी है वो नहीं रहनी चाहिए, उसको एक मेथोडोलॉजी ट्रांसपेरेंट मैनर में पता लगनी चाहिए कि सर ये काउंटिंग कैसे करते हैं। अब ये जो काउंटिंग है ये अप्रॉक्सीमेशन है, क्योंकि जो हम आपको आंकड़ा दे रहे हैं वो आपके द्वारा दी गई फिगर्स के आधार पर दे रहे हैं। और अगर आप उस पीरियड की वीडियोस देखेंगे तो आपको ये सारे लोगों के कमेंट वहाँ मिल जाएंगे कि सर मेरी सिलेक्शन हो गई है, मेरी सिलेक्शन हो गई है। और अब तो कोई वैसे ही इस आंकड़े की इतनी सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाएंगे, अगर वहाँ 4000 5000 लोगों ने ज्वाइनिंग की है तो आपको बहुत आसानी से लोग 500 1000 ये बताते हुए मिलेंगे कि सर हम अनिल अग्रवाल का चैनल फॉलो करते थे। अब तो यहाँ तक भी हो रहा है कि जब इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन का आंसर देता है तो बोर्ड मेंबर भी उससे मजाक में कह रहे हैं अनिल अग्रवाल का आंसर दे रहे हो आप, अनिल अग्रवाल का चैनल देख के आए हो। तो ना केवल कैंडिडेट इस चैनल को देख रहे हैं, जो लोग इंटरव्यूज ले रहे हैं वो लोग भी देख रहे हैं। क्योंकि आप में से शायद काफ़ी लोगों को ये नहीं पता कि मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग में 1986 से पढ़ाता था और 1986 से लेकर मैं ये उनको पढ़ाता रहा लगभग 1999 तक, रादर 2004 तक भी पढ़ाता रहा। और उसमें सभी बैंकों के कैंडिडेट आते थे। वो उस समय कोई स्केल 1 में था, कोई क्लर्क था, कोई स्केल 2 था। आज वो सब आगे बढ़ते बढ़ते कई बैंकों में डीजीएम बन चुके हैं, जीएम बन चुके हैं, कोई उसमें से 1-2 ईडी भी हैं। और वो मेरे पढ़ाए हुए कैंडिडेट हैं, उन्हें पता है अनिल अग्रवाल की कितनी नॉलेज है बैंकिंग के अंदर। आप लोग नए युग के हो, आपको शायद मेरे बारे में इतना पता नहीं है और मैं ज़्यादा बोलता भी नहीं हूँ इस बारे में। तो जो लोग मेरे से पढ़े हैं और अच्छी पोजीशनों पे बैठे हैं, जैसे उनको पता लगता है कि अनिल अग्रवाल का कोई चैनल है, वो इसको जरूर देखते हैं। उनको तो रेडीमेड क्वेश्चन मिल जाते हैं इंटरव्यू में पूछने के लिए, और क्या चाहिए। उनके तो मजे लग जाते हैं, उनको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। और उनको ये भी पता है कि जो इस चैनल पे चीज़ है वो ऑथेंटिकेटेड है और चैनल के सब्सक्राइबर्स को फायदा हो जाता है कि प्रश्न पूछा जाता है और आंसर उनका सही हो जाता है और उनकी सिलेक्शन हो जाती है। ये तो आपकी किस्मत है कि आप इस चैनल के सब्सक्राइबर हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।